السلام علیکم ناظرین کرام، میں سردار اویس اشرف خان ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN کی اردو سروس۔ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے اندر۔ شرکاء بڑی تعداد میں عمران خان کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور مزید لوگ آ بھی رہے ہیں۔ آپ سے شرکاء کی گفتگو بھی کروائیں گے اور لوگوں کا احوال بھی جانیں گے اور ان کے خیالات بھی جانیں گے کہ اس حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کہاں سے آپ کا تعلق؟ میرا تعلق شوج آباد سے ہے۔ کی کہہ رہے ہو سی؟ جی اساں میں پکڑے تسی گل کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا سرائیکی صوبے کی بات چلی تھی ان کے دور میں، نون لیگ کے دور میں اور پیپل پارٹی کے دور میں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا عوام کے اوپر، اس لیے تحریک چلی سرائیکی صوبے کی۔ وہ سرائیکی صوبہ اب جو ہے عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تو وہ ضم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی تحریک میں وہ ضم ہو گیا ہے۔ وہ شاکر شجاع آبادی جو ہے وہ ہمارا آپ کوئی شاکر شجاع آبادی کا کوئی شعر سنائیں گے؟ جی ضرور سنائیں۔ ساڈے پیر بھی بدھے گئے، ساڈے پر بھی کھتے گئے، ولا ملی خوشخبری تساں آزاد تھی گئے ہو۔ بالکل آزادی کو نہ ہن انشاءاللہ آزادی دی امید ہے۔ انشاءاللہ کیویں آزادی تسی کیویں لوو گے؟ آزادی اس طرح صرف اور صرف یہ آزادی ملی تھی، پاکستان صرف نہیں آپ آزادی کیسے لیں گے؟ اب آپ کیسے لیں گے یہ حقیقی آزادی جو مارچ ہے؟ آپ حقیقی آزادی کیسے لیں گے؟ آزادی حقیقی آزادی اس واسطے گنسو ساکو انصاف کوئی نہ ملتا ہا۔ بالکل اتنا بہت بڑا ظلم تھے، انہوں نے ظلم کیتے عوام دے اوتے۔ یہ اداریاں دے نال مل کے اداریاں انہاں اپنے کنٹرول وچ رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل بھی انصاف نہ مل سکتا۔ تھانہ ہے، پولیس ہے، قبضہ گروپ ہے، سارے زمینوں دے اوتے متحد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم جس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ مافیاز رہ رہے ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے اس کو آپ حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں؟ جی ان سے جان چھڑانے کے لیے حقیقی آزادی پہ جو ہے نا ہم نکلے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ ضرور ملے گی حقیقی آزادی چاہیے۔ کس طرح کی آزادی؟ آزادی چاہیے، لٹیروں چوروں سے آزادی چاہیے۔ ہاں میں وہ پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو جو آزادی ہے وہ کن لوگوں سے چاہیے؟ ایماندار، ہمیں ایماندار لیڈر چاہیے۔ اچھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان چوروں سے آپ کو آزادی دلا دے گا؟ انشاءاللہ کیسے؟ یہ دیکھیں نا، یہ دنیا خود دلائے گا نا۔ دیکھیں نا، ان لوگوں نے سب مل کے، ان سب نے مل کے جن کو آپ چور کہہ رہی ہیں انہوں نے مل کے تو آپ کو نکال دیا، آپ کے کپتان کو، تو آپ کہہ رہی ہیں ہم آزادی اللہ لیں کی گے۔ مدد ہے نا، آپ کے خیال میں نہیں ملے گی آزادی؟ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کی ذات ساتھ ہے نا خان کے، تو انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ چلیں جی، لوگوں کی عزائم میں ہم اور بھی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا لانگ مارچ چل رہا تھا ابھی جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ جلسے میں تبدیل ہوا یہ تو بھی خان صاحب نے ڈیسیژن نہیں لیا، لیکن آپ کا جو کویسچن تھا اس کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا۔ وہ محترمہ سے آپ نے جو کویسچن کیا کہ آزادی چاہیے، اگر میں سچ میں بتا دوں آزادی چاہیے تو آپ لوگ آن ایئر کر سکیں گے اس کو؟ ہاں کیوں نہیں، ہم تو کبھی بھی اس طرح کا ہڈن نہیں رکھتے ہیں۔ ہم تو جو بات کو کہتے ہیں ہم تو اسی طرح بیان ہی اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح آپ کہیں گے۔ دیکھیں، ہمیں ان لوگوں سے آزادی چاہیے جن لوگوں نے قائد اعظم کو غلط گاڑی خراب ایمبولنس پرووائڈ کی۔ ہمیں ان سے آزادی چاہیے جن لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی سپیچ کے اوپر 18 سال پابندی لگائی، اور پھر جب ایک دن انہوں نے سپیچ اوپن کی تو انہوں نے جب کہا کہ میرے بھائی قائد اعظم کا مرڈر ہوا ہے، تو اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کا بھی مرڈر ہوا۔ ہمیں ان سے آزادی چاہیے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے لیٹ می کمپلیٹ۔ دیکھیں، اداروں کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے، ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور ان کا نیکسس جو لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا، جو لندن سے بھی آگے بھاگ گیا، کبھی اٹلی تو کبھی سوئٹزرلینڈ، جو کہ وہاں بیٹھ کے قتل و غارت کرا رہا ہے، جس کی بیٹی بھی شامل ہے اس قتل و غارت میں، ارشد شریف، اور وہ جو FIA کے ڈائریکٹر جو ہے تفتیش کر رہے تھے، اور مقصود چپڑاسی کا مرڈر جنہوں نے کیا، وہ ساری چیز سامنے آ رہی ہے اب کھل کے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اب کچھ بھی ہڈن نہیں ہے۔ آپ کھل کے پوچھیں، میں خود کھل کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ جن اداروں میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو آرمی چیف آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے آرمی چیف تھے، اب یہ جو کمان کی تبدیلی ہوئی ہے اس سے حالات کوئی بدلیں گے یا ویسے ہی رہے گا؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے اچھے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیشہ مجھ سے اچھی امید رکھیں تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے ثمر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش ہم کرتے رہے ہیں،
75 साल इस कौम ने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। चलें जी, हमारी बातचीत चल रही है, हम और लोगों से भी बात करेंगे उनके क्या ख्यालात हैं। एक छोटे नन्ना सा एक मुजाहिद भी हमारे साथ है और ये कमांडो के यूनिफॉर्म में, हम इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अलियान अहमद। अच्छा अलियान, क्यों आए आप यहाँ पे? हम हकीकी आज़ादी मार्च ही ले आए हैं। अच्छा, आप कप्तान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हुए हैं? यस पढ़ते हैं आप? यस कौन सी क्लास है आपकी? जी जे खान के लिए कोई आपका मैसेज या पैगाम? इमरान खान हमारे वक्त के साथ हैं। हम यहाँ पर खान के लिए आए हैं और हम हमेशा खान के साथ रहेंगे। हम खान की एक आवाज़ पे आए हैं और मैं इस हुकूमत के लिए जो अभी इस टाइम पे पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है हुकूमत, उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तू, यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। अच्छा, इकबाल का शेर भी जो आप एक तालिबा ने हमारे साथ शेयर किया है, इसका मतलब ये है कि इकबाल ने अपने शहीदों के लिए जो पैगाम दिया था, वो शहीदों के अंदर वो पैगाम जो है वो रच बस गया है। और लोगों को पता है, बच्चों के आज की जो हमारी यंग जनरेशन है उसको पता है कि इकबाल जो है वो क्या इनकलाब दे के गए या क्या नवीद दे के गए। आज का जो जलसा है या धरना है या कन्वेंशन है, कितनी तादाद में लोग आएंगे? लाखों की तादाद में लोग आएंगे और मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना चाहिए। पिछले 6-8 महीने से जो इस मुल्क की हालत हो गई है, इकॉनमी आप देख लें, फॉरेन रेमिटेंस देख लें, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो बेहतरी की तरफ चल रहा हो। हर इदारा जो है आपका डाउनवर्ड चल रहा है और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पिछले 6 से 8 महीने में इस मुल्क को 80% जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए। तो आप क्या समझते हैं कि आप चूंकि गवर्नमेंट तो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई चांस भी नहीं बन रहा कि इलेक्शन आ जाए, फिर आपकी गवर्नमेंट आए, फिर खान आए, फिर कोई हालात संवारे, अभी तो इस तरह का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। देखें, अभी नए जो आर्मी चीफ़ आए हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वो माशाल्लाह कुरान हाफिज़ हैं और अगर कुरान हाफिज़ और कुरान को जब बंदे ने समझ लिया ना, तो फिर उसका फ़ैसला भी जो है वो इस कौम की बेहतरी के लिए ही होगा, ना कि जो 75 साल से लोग सिलसिला एक चलता चला आता रहा कि सब लोग जो है बस फॉर्मेलिटी वाले सारे काम बातें करते रहे, अमलन किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये माशाल्लाह से जो नए आर्मी चीफ़ आए हैं, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इंशाल्लाह इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हर दिन गुजरने के साथ साथ ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। और ये इंटरनेशनल चोर जो कि अब इंग्लैंड की अदालतों ने भी इनको सेटिस्फाई चोर करार दे दिया है और इन्होंने आकर क्या किया है, अपने 1100 अरब अच्छा, ये बताएं कि आपका जो लॉन्ग मार्च चल रहा था वज़ीराबाद में, जिसका अख्तिताम आके रवात के मुकाम पे हुआ और आज वो यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये है, कहा यह जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा और इसको जलसे में तब्दील किया जाएगा, इसकी क्या वजह बनी है? मेरे ख्याल में तो लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इमरान खान को धरना देना चाहिए, जब तक इलेक्शन कॉल नहीं हो जाते सारा मुल्क जाम करना चाहिए। आप इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। आपको कहा गया है कि आप बढ़ें? नहीं, अभी नहीं कहा गया, हम खान साहब की कॉल का वेट करेंगे। यानी अभी आपको कॉल नहीं दी गई, कॉल दी जाएगी तो आप इस्लामाबाद ऐवानों की तरफ आपका मार्च होगा? ज़रूर इंशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि नए आर्मी चीफ की जो आमद हुई है, जो अभी कमान की तब्दीली अभी 1-2 दिनों में होना बाकी है और जब कमान स्पुर्द हो जाएगी तो लोगों का ये कहना है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी है और उनसे उम्मीदें भी उनको बड़ी ज़बरदस्त हैं कि वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से उनकी जान छुड़ाएंगे, ये लोग कहते हैं। अभी और लोगों से भी हम बात करेंगे। चित्राल से किस उम्मीद से आए हैं? हम इस उम्मीद से आए हैं कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसके ख़ात्मे को, और हमारे कायद इमरान खान ने जो नारा लेके आए हैं हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा। नहीं, आप खात्मा कर लेंगे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का? अभी खान साहब के हम कॉल का इंतज़ार करें, जो ही वो हमें कॉल देंगे हम इस्लामाबाद की तरफ तैयार हैं उसके साथ। यार कहा यह जा रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये धरने में भी नहीं बल्कि ये तो जलसे में तब्दील हो गया, एक दिन के कन्वेंशन में। क्या समझते हैं, क्या वजह बनी है? जी बिल्कुल, मेरे ओपिनियन के मुताबिक मुझे लगता है कि खान साहब भी क्राउड को देखेंगे, जितनी ज़्यादा क्राउड होगी तब वो क्राउड के उम्मीदों पे इस्लामाबाद तरफ हमें कॉल देंगे लॉन्ग मार्च का। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी आवाम आती है, लेकिन अभी तक लाखों नहीं, इलेक्शन तो अभी इलेक्शन होने तो अभी कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं सर पे। इलेक्शन अभी होंगे। आपको कैसे पता कि इलेक्शन? मुझे पता है इलेक्शन होंगे, क्योंकि उनके पास अभी कोई भी चांसेस नहीं रहे, सब पकड़े गए हैं, चोर सब पकड़े गए हैं, ठीक है।
तो और अभी- चोर तो यार बड़े अरसे से पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होना है चोर के पकड़ने से? वो क्या है, वो अदालतें छोड़ देंगी आगे अदालत जाके? ने प्रोसिक्यूशन ही हमारी कमजोर है, कैसे हम सजाएं दे पाएंगे? इंसाफ का निज़ाम आएगा तब हो जाएगा। जब हम हकीकी तौमानों पे आज़ाद होंगे तब ये सब कुछ हो जाएंगे। तो खान साहब के साथ हम इंशाल्लाह हकीकी आज़ाद पे मरते दम तक उसके साथ दें और उसका साथ देते रहेंगे। चलें चलें, हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं जी। हकीकी आज़ादी की तरफ कुछ नन्हे मुन्ने मुजाहिद आए हुए हैं हमारे साथ। ये छोटी सी एक बच्ची आई है, देखते हैं ये क्या कहती है। जी बेटा, क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइजाज, आई लिव इन इस्लामाबाद। मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगी जो मुल्तान, कराची, पेशावर, मियाँ वाली से आए हैं। मैं यहाँ अपनी हकीकी आज़ादी के लिए आई हूँ। मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और मैं अपना फ्यूचर बचाने आई हूँ चोरों डाकू से। और मैं यही कहना चाहूँगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान जिंदाबाद। गुड जी, बहुत अच्छा जी। हमारे साथ मज़ीद हम और लोगों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ से? जिला तौरगर। कितने लोग आए हुए होंगे? काफ़ी सारे आए हैं, तकरीबन काफ़ी से मुराद हज़ारों लाखों? हज़ारों लाखों आए। ये बताएंगे, ये जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जलसे में तब्दील हो रहा है और आज जलसा हो के तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, आप किसी कॉल का इंतज़ार करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे या आज ही जलसा होकर ख़त्म होकर उसके बाद चले जाएंगे? सर हम तो खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग खुद अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि हम ये जलसे में तब्दील हो गया, इस तरह हो गया, लेकिन ये कुछ नहीं है। अभी जो हमारा राना सनाउल्लाह साहब है वो कह रहे हैं कि रास्ते बंद नहीं है। 26 नंबर से इधर तक हम पैदल आए, हर जगह इन्होंने कंटेनर लगाया, गाड़ियाँ भी। यार राना सनाउल्लाह ने तो ये कहा है कि इस जलसे के अंदर दहशतगर्दी का खदशा है और यहाँ पे कोई तालिबान ग्रुप हैं और वो हमला करेंगे और दीगर। उन्होंने TLP का नाम लिया कि जी इमरान खान ने, चूँकि जब उनकी दौरे हुकूमत था तो उस वक्त उन्होंने TLP वालों को रोका था, उनके ऊपर कुछ शेलिंग हुई थी, तो उस वजह से वो लोग आगे तो खुदकश हमला करेंगे और कुछ करेंगे। तो राना सनाउल्लाह के बारे में आप क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ा दहशतगर्द राना सनाउल्लाह खुद है। आप देखें अरशद शरीफ को किसने मारा? इन्होंने ही मारा। नवाज शरीफ ये राना, ये आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने मारा? ये खुद इनका बंदा कह रहे हैं, वो आपने नहीं देखा है? वो समीम है कौन है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने किया है ये इमरान खान पे जो फायरिंग। उसकी तो अभी तहकीकात होना बाकी है ना? बाकी है सर, जिधर तहकीकात हो रही है इंशाअल्लाह ये चोर डाकू जो है ये पकड़ेंगे ये कातिल। ये पाकिस्तान नहीं कि तहकीकात होगी और बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात हमारे हाफिज़ साहब के लिए, हाफिज़ साहब आप हमारे मुहाफ़िज़ हो, हम आपसे बहुत उम्मीदें हमारी आपसे हैं। आप इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी उम्मीदें आपसे, आप हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आप आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं? जी हम आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं। वो हाफिज़ साहब है, वो हमारा मुहाफ़िज़ है। और बाजवा ने तो दौलत बहुत कमा लिया लेकिन उसने इज़्ज़त कोई नहीं कमाया। उसने हमारी फ़ौज, दुनिया की नंबर 1 फ़ौज को उसने इतना बदनाम किया कि यानी आप ये समझते हैं, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो फौज की कमान की तब्दीली हुई है उसमें जो हमारे पहले आर्मी चीफ हैं जो अब भी मौजूद हैं, अगली 2 दिन बाद कमान तब्दीली होनी है, तो आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो चले गए हैं, तो अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो फौज को स्टेबल करेंगे और उसका मकाम जो है वो भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वो हमारे उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। ये इमरान खान ने इनको इनके रंग में कोट किया। इन्होंने भेजा सिमरी कि वो दस्तखत नहीं करेगा, लेकिन इमरान खान ने कर लिया। उनको पता था जो फौज में अच्छा आदमी था उसका सिमरी में नाम भेजा कि इमरान खान जिद करेगा, नहीं भेजेगा, लेकिन इमरान खान ने कर दिया, इनके रंग में इनको कोट किया। और इंशाअल्लाह हमारी बहुत उम्मीद। यार वफाकी वज़ीर दाखिला ने तो ये कहा है कि इस जलसे के अंदर दहशतगर्दी है, दहशतगर्द आ रहे हैं और ये जलसा मनसूख कर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सर जो कुछ उन्होंने कहना था कह दिया। बाकी आपने अभी खुद इधर पे देख लिया कि लोगों की क्या कंडीशन है, लोगों का क्या जज्बा जुनून है। बहुत बहुत दूर से लोग आए, बूढ़े बच्चे सब इसमें शामिल हैं। सर जी मैं सिर्फ ये कहूँगा, असल में मैं पास से गुजरा था, मैंने देखा कि अरशद शरीफ की बात हो रही है। सर जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सर जी मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और अकेला आया हूँ। मेरे भाइयों ये वक्त है, अगर इस वक्त हम ना निकल सके तो अल्लाह की कसम सारी ज़िंदगी हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो एक माँ का बेटा इमरान खान जो निकला हुआ गोलियां खा के भी निकल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है। अपने काम कारोबार सबको छोड़ो
اور اس حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہو جاؤ. یہ وقت ہے, یہ وقت گزر گیا تو پھر وقت نہیں آئے گا. یار یہ بتائیں, میری بات سنیں, امپورٹڈ گورنمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, ان کے سارے وزراء یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, اس کو کچل دیں, آپ کیا کہیں گے؟ سر کہتے ہیں کہ پریکٹس میک پرفیکٹ. سر دیکھیں عمران خان جس کے دور حکومت میں وہ کیا کرتا رہا ہے, سب چیزیں, تعلیم کا نظام اس نے اچھا کیا ہے, لوگوں کے لیے صحت پروگرام شروع کیا ہے, اسپتالوں میں لوگ دھکے کھاتے تھے لیکن اللہ کی قسم اسپتالوں سے لوگ نکلتے اور دعائیں دیتے ہاتھ اٹھا اٹھا کے عمران خان کو. تو میرے بھائیوں, وہ جو اس کے اختیار میں تھا, اس نے اسے بڑھ کے کیا ہے. حالانکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ صحیح طریقے سے کسی کیس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا تھا, وہ کسی جس نے کیا کرپشن کیا اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن یہی وجہ تھی, ابھی اس نے مرد کا بچا اور اس نے کہا ہے کہ جب مجھے پورا اقتدار ملے گا تو میں اقتدار میں آؤں گا, ورنہ میں نہیں آؤں گا.